साइकियाट्री का वार्ड कहीं पीछे कोने में होया करता था. So we were not, recognized doctors at that time. Somebody didn't consider us doctor only, कि ये तो सिर्फ बात करने वाले लोग हैं. It was difficult to say कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं. Hello everyone, welcome to Aram Mental Wellness Podcast Inside the Therapist Room. Today we have with us Dr. Deepti Bhatt. She is a psychiatrist in Hospital for Mental Health Ahmedabad, the largest government mental health hospital in Gujarat, and she's been working there for more than 20 years, I think. And overall, ma'am has experience of more than 25 years. So imagine psychiatry, ऐसी फील्ड जो 25 साल पहले इंडिया में ज़्यादा लोगों को नहीं पता थी, लोग नहीं चूज करते थे, और उस टाइम पे एज अ फीमेल डॉक्टर मैम चोज साइकेट्री, और मैम का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड, बी इट डिलीवरिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बी इट कोऑर्डिनेटिंग, बीइंग द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ टेलीमानस, जिसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बात की है, द फ्री नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टेलीमानस. सो मैम इज मैनेजिंग दैट फॉर द एंटायर गुजरात. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. आपके इतनी बिजी स्केड्यूल ओपीडीज में से आप टाइम निकाल के आए, दैट इज very helpful for us. My pleasure. So thank you for inviting me, giving me the platform to talk about mental health and talk about how it is doing in Gujarat. क्या चल रहा है अब आज और पहले क्या हो रहा था. You just reminded me. I just wanted to share a personal thing कि जैसे 2001 I joined my residency in psychiatry. So while I was going for my admission, my father was with me, and we decided that because mental health will be a problem in a future, so and I was interested in psychiatry, so I chose psychiatry over other fields. But as soon as we reached home, तो मम्मी was like started crying कि तूने क्या कर दिया, कि कैसे लोगों से डील करेगी तू, कैसे कैसे पेशेंट्स आते होंगे. So that was an era. मैम वो आई वुड से 2001 में ऐसा था, इवन 2012 में जब मैंने साइकोलॉजी चूज किया तब भी ऐसा ही था कि क्या पागलों की डॉक्टर बनोगे, ये क्या होता है, इसका स्कोप क्या है. एंड हेंस आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई रियली वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू, आपने इतने सालों में एक गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में काम किया है, आपने बहुत चेंजेस देखे होंगे. तो अगर मैं पूछूं कि 2001 में साइकियाट्री या साइकोलॉजी का, मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस था versus now we are in May 2026, अभी क्या है, how do you see it? Lot of difference. When I started, एक typical scenario होता था. Let's talk just about infrastructure. पहले तो एक typical, अगर आप हॉस्पिटल ले लो या कोई मेडिकल कॉलेज ले लो, जो अच्छा एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, नॉट द स्मॉल वन, उसमें भी साइकियाट्री का वार्ड कहीं पीछे कोने में होया करता था. So we were not, recognized doctors at that time. Somebody didn't consider us doctor only, कि ये तो सिर्फ बात करने वाले लोग हैं. It was difficult to say कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं. So that was the thing. जब मैंने 2004 में हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ ज्वाइन किया, again same situations, we really had to fight for basic necessities for the patients, कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे दवाइयाँ होनी चाहिए. And I was lucky to be a part of the development of the hospital, जो अभी हुआ है काफी. Now like we are a state hospital, जहाँ tertiary care center है, we have a lot of facilities to different investigations, starting from blood investigations to the CT scan and everything, all psychological tests, all therapists available. But at that time our team just consisted of 2 doctors, 1 psychologist, and few nurses, nothing more than that. So that's the thing about the the hospital part. Again, if we talk about the mental health in community, so as you said, there was a lot of taboos.
taboos about the illness, about the treatment, even about doctors. Yeah. So, but now the era has changed. People have started coming to us. They come to us willingly. पहले ये होता था कि इनफैक्ट ये होता था कि जब लोग आते थे इतनी हालत खराब हो चुकी होती थी कि इट वाज डिफिकल्ट टू ट्रीट केसेस. नाउ वी गेट कि लोग जल्दी आ जाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता है, लोगों का मेंटल हेल्थ के ऊपर विश्वास भी बढ़ा है. सो दैट्स द चेंज दैट आई हैव सीन. वाओ कितना अच्छा रहा होगा ना, फ्रॉम सीइंग समथिंग टू नाउ अ कंप्लीट लाइक डिफरेंट पिक्चर. एंड व्हेन वी से दैट मैम, आई एम श्योर, क्योंकि आपने बताया 2004 से आप एक गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में है. हमारे यहाँ ये एक मेंटालिटी भी होती है कि गवर्नमेंट की केयर इतनी अच्छी नहीं होती. पर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जब मैं पहली बार आई थी फॉर विजिट, मेरे जो दिमाग में वो पिक्चर्स थे जो एक सोशल मीडिया पे या सीरीज में देखे होते हैं ना, क्या पता पेशेंट्स को चेन से बांधा होगा, ये करते होंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स इनफैक्ट अ वेरी गुड सर्विस. ऑफ कोर्स प्राइवेट के जैसे एसी नहीं होगा शायद, पर इट्स अ वेरी गुड सर्विस. बट along with the infrastructure, कुछ और many other challenges that you have faced in these 25 years of experience, especially also, you know, working in a senior position in such a large hospital. चैलेंजेस तो आती रही, हम उसे डील भी करते गए, और दैट जर्नी वाज ब्यूटीफुल. सो इनिशियली एज आई सेड द चैलेंजेस वर इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर जो इट इज नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग टू द स्टिग्मा, इट नॉट ओनली फाइटिंग अबाउट टैबू, it was also a fighting with our own administration ki mental health bhi important hai. So we also need some staff, some infrastructures, and we need policies, we need funds. So that was the challenge initially. But then as we were recognized, we were we were a part of some good projects कि जो पहले बिल्कुल एक जैसे लोगों के दिमाग में होता था कि चेन्ड पर्सन्स या चेन्ड पेशेंट्स हो गए, उसका चेंज जो आया कि आफ्टर देयर वाज दिस येरवडा इंसिडेंस, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट्स को चेन्ड किया जाता है उनको तपास शुरू करवाया, उसके बाद जो चेनिंग सारा हर जगह पे बंद हुआ, हमारे गुजरात में भी उसके ऊपर एक पूरा इनिशिएटिव लिया गया. और जो पूरा मेंटल हेल्थ कि हमें किसी को ना तो फिजिकली रिस्ट्रेन करना है, नॉर वी वांट पेशेंट्स टू स्ट्रेन chemically also. Right. So we brought about a change in the care. कि पूरा राइट बेस्ड अप्रोच, कि पेशेंट्स के राइट्स को हम हैम्पर नहीं कर सकते. चाहे एक छोटी सी बात ले लो, आप जब सुबह उठते हो, आप तय करते हो कि मैं इतने बजे उठूंगी और इतने बजे मैं चाय पीऊंगी. जबकि अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूट में है तो उसको 6 बजे उठना है, 7 बजे चाय मिलेगी, 8 बजे यू विल हैव टू हैव योर बाथ. सो दैट इज नॉट अ राइट वे ऑफ. पेशेंट्स का खुद का चॉइस, खुद का राइट्स, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है, कितने बजे उठना है, वो राइट बेस्ड अप्रोच हमने अपनाया. एंड देन वी वेंट अलोंग. राइट. इतने साल, इतने सारे धक्के खाए होंगे आई एम श्योर. कितनी ऑफिस में फंड्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए. आई एम श्योर शायद ऐसी भी एक फीलिंग आई होगी कि डॉक्टर के साथ साथ या डॉक्टर के अलावा भी और बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव है और बहुत काम किया है, बहुत फाइट्स की है, नॉट जस्ट अराउंड पेशेंट्स. बट देन आई मीन आई सी द फ्रूट्स. मैं तो रिसेंटली देख रही हूँ, तो मैं तो वो अच्छा ही चेंज देख रही हूँ. If we, ma'am, also along with this, if we talk about the patients, आपने इतने सालों में इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, आईपीडी में लाइक एडमिट हुए ओपीडी बेस्ड डेली पेशेंट्स देखे हैं. कई बार एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, कोई तो ऐसी स्टोरी होंगी जो शायद आपको भी टच की होगी, या कई बार कहते हैं ना हमारी सिस्टम हिल जाती है. many stories. So I will
like to talk about few stories, Yes, not please. one. Please. So there was this patient with us. As you know, I am working in a unit 2 since beginning. So मेरा Tuesdays और Fridays को मेरा OPD रहता है. तो OPD में एक लड़की आती थी. लड़की she was young, around 25 years old. She was married and divorced because she had a very bad postpartum psychosis which turned into schizophrenia. So even the जो girl के parents है, they decided कि she should take divorce because वो husband को अगर हम बांधे रखेंगे and there will not be any emotional connect between them, so it's better कि लड़की हमारे पास रहे. So mutually दोनों का divorce हो गया. And that girl, she was working with us in occupation therapy department. She was a good tailor. So आती रहती थी हमारे यहाँ. We were changing her treatments. वो जब आई तब वो काफी खराब कंडीशन में थी. बट उसके बाद वो इम्प्रूव होती गई. शी बिकेम इंडिपेंडेंट. अकेले अब हॉस्पिटल में आना, टेलरिंग डिपार्टमेंट में काम करना, अकेले वापस जाना, मैनेजिंग हर ओन फाइनेंसेस एंड सोशलाइजेशन. ये सब देख के उसके हस्बैंड को वापस ये लगा कि मेरी बेटी जो माँ के बिना जी रही है, अगर वो हम वापस शादी कर ले तो वो बेटी को माँ मिल जाएगी, मुझसे पत्नी मिल जाएगी. बिकॉज ही ऑल्सो कुड नॉट मैरी एनीवन एल्स along the time. तो the girl's brother came and meet me and asked for advice कि क्या करें मैडम. I said it is a wonderful thing. Only thing is see that कि patient's rights get protected. She gets the official status of wife. Yeah. So that legal protection भी उसको मिले. कुछ बाद में अगर हो गया तो ये ना हो कि पेशेंट को बाद में कुछ नहीं मिला. So ये that was a good story which you know I had seen कि कैसे कैसे ह्यूमैनिटी भी चेंज होती है, कैसे रिकवरी कैन bring lot of happiness into the person's life. Yeah. That lady still comes to me. She lives in Baroda now, but she comes for the treatment all the time. Very happy. The daughter is now graduated. So it's a wonderful thing that it stayed with me for a very long time. That too a case of schizophrenia. Yeah. जहाँ पे बहुत सारे लोगों में ये मिथ है या कि कभी अच्छा नहीं वो होगा. तो पूरी जिंदगी अब दवाई ले लो, पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो सकता. पर सी विद गुड ट्रीटमेंट अच्छा भी हुआ और उसकी लाइफ पहले जैसे नॉर्मल सो कॉल्ड भी हो गई. एक दूसरी लेडी की मैं बात करना चाहूंगी. अब समवेयर अराउंड इन हर 50s she came to us. She was admitted to us as a wandering mentally ill. Like जैसे रोड पे कोई किसी ने देखा होगा कि ये बहन है, वो कहीं रास्ते पे थी. She was not in a good shape. So somebody called the police and police got her admitted to us. As we treated her, she gave her details कि husband was वो साधु बन गया है. So sadhu is not giving any support to the family and she has son. तो in-laws में और कोई support नहीं करना चाहता और brother sister में कोई था नहीं. So then gradually she gave the address कि मेरा ये पुराना घर यहाँ पे था जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी. We went there, asked the neighbors कि बच्चे का क्या हुआ. Then they said कि बच्चा अभी पीजी में रह रहा है because he himself could not afford the rent. और मम्मी तो गुम हो गई है. So he went into PG. He was doing engineering. वो पीजी में रहता था, काम करता था, पढ़ाई करता था. We contacted him there and he was very happy to meet the person. Like then he promised me that every Saturday Sunday till he is in the college he will come to hospital, meet mom, and every Saturday Sunday when other PG students are not in the PG he will take mom to the house. So हम उसको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देते थे. सैटरडे को छुट्टी ले जाना,
मंडे वापस एडमिट हो जाना. अच्छा. So that was like, you know, थोड़ा little out of box. कुछ किया. शायद लोगों को लगे कि पागलों के डॉक्टर भी पागलों के जैसे बिहेव करते हैं. But we did that for a very long time. Then he got job. He had his own rented apartment. Then he finally took the mom with him. Wow. And till then he had a girlfriend also. And the family was so dedicated. Like the girlfriend came to home to help him to get her mother dressed well. जैसे shampoo करना. So because she was for a very long time in an institute, she had little loss of social skills and all. So that girl, I mean, I appreciate such kinds of such bahus. I mean, it's rare to find. Yeah. So that's the Wow. success story that now she lives with happily with the son and wife. So much satisfaction I see in your eyes Yes. कि इतना आउट ऑफ बॉक्स जाके घर गए, ढूंढा, कांटेक्ट किया, मतलब एवरीथिंग पॉसिबल. कई बार ना लोगों को ये भी लगता है कि डॉक्टर्स का तो क्या रोल होगा ना, ओपीडी में बैठे हैं, बस पेशेंट आया गया, देखा, बात खत्म. बट लुक एट दिस, जहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज से इतना बियॉन्ड जाके जस्ट टू सी कि नहीं, वो अपने फैमिली के साथ रियूनाइट हो रहे हैं. लाइक wow. So that's a beautiful thing about hospital mental health. Like we have full, you know, freedom to use our creativity in benefit of patient. So we are doing such things, and even if people say that you cannot do many things in a government setup, I do not believe that. Wow. I do not believe. Or you broke that. Probably. हाँ. शायद कोई और होता, मतलब अगेन डिपेंडिंग अपॉन पर्सन्स इंडिविजुअल चॉइस ऑल्सो ना. कोई नहीं करना चाहता है बियॉन्ड कैपेसिटी तो नहीं करते. बट इट्स अ वंडरफुल टीम जिसने बहुत किया कि नहीं हम तो करेंगे, ऑफ कोर्स फॉर पेशेंट्स बेनिफिट. दैट्स ग्रेट. इफ वी मूव ऑन टू यू नो सिमिलरली, मतलब जो ये सक्सेस स्टोरीज है, होप की स्टोरीज है, रेजिलियंस की स्टोरीज है, any other stories that come to your mind, you know, around maybe something that someone taught you or something जहाँ पे आपका भी एक कुछ बिलीफ चेंज हो गया कि ओ ऐसे भी होता है, या दुनिया ऐसी है या ऐसी नहीं है. So the part of the you know, working in a hospital of mental health Ahmedabad, I sometimes say that in a sarcasm कि अगर आपको दुनिया की माया छोड़नी है ना, तो you do not need to go to some sadhu or listen to some katha. Work here. कि पूरा आपका जो मोह माया है ना छूट जाएगा. अच्छा. क्योंकि we come across such cases जहाँ पे जो लोग, जो रिलेटिव्स हैं, कैसे अपनों को छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ के चले जाते हैं, कैसे अगर हमने ढूंढ निकाला तो भी लेने नहीं आते हैं. So we get lot of such cases. So such, I mean, it's a good thing for us. I have learned lot of patience from all the patients from the OPD because it requires a lot of patience. Because I mean, you know, as a psychologist, that कि आज हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आज के आज हमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा. इट इज नॉट ओनली चैलेंजिंग फॉर द रिलेटिव्स कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इवन फॉर अस एज अ प्रोफेशनल टू गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि कब अच्छा होगा. यू नो, वो वर्क सेटिस्फेक्शन हमें बहुत लेट मिलता है, नॉट इमीडिएटली. अनलाइक मेनी अदर प्रोफेशनल्स के जहाँ पे आपको इंस्टेंटली दिखता है फायदा, यू ऑल्सो फील सेटिस्फाइड. पर हमारी फील्ड ऐसी है जहाँ पे we have to wait. Slow is fast in our field, so we cannot rush कि अभी के अभी सब वो हो ही नहीं सकता. वो नहीं हो सकता. So that's the thing I think I have learned a lot from the patients. मैं बहुत ज्यादा impatient हुआ करती थी, और अब मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं मैडम आप कितनी बदल गई हो. So that's the thing. But I always wish कि जो एक जुनून है हमारे अंदर, बस वो नहीं मरे. To help the people with mental illness, वो नहीं मरना चाहिए. बस. I think that's more like a, you know, a small bit of advice for people like me
people who are in this field who will be listening to this podcast, psychologists, psychiatrists, early career professionals, कि जहाँ पे जैसे आपने कहा दोनों टाइप की स्टोरीज है, रेजिलियंस की स्टोरी है, होप की स्टोरीज है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी स्टोरी है जो देख के दुख होता है कि अरे मतलब आई ऑल्सो रिमेम्बर जब मैं HMH में ट्रेनिंग चल रही थी, देयर वर सो मेनी क्लाइंट्स पेशेंट्स इन द वार्ड जिनका PhD किया हुआ है, अच्छी जगह पे जॉब करते थे, बहुत अच्छा खासा कमाते थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा हिटिंग पॉइंट या रियलाइजेशन ये था कि आप जहाँ पे भी हो ना, लाइक यू नेवर नो, आप भी यहाँ पे हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब बिकॉज मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ वट मुझे कोई मेंटल इलनेस नहीं हो सकती, या यू नो लाइफ के सर्कमस्टांसेस नहीं बदल सकते। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद probably I'd like to ask for some concluding remarks for people like me and early career professionals. आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? क्योंकि इस फील्ड में होप भी है पर होपलेसनेस भी है। Yes. जितना दुख है उतना कंपैशन है, मतलब सब कुछ है। तो फिर कैसे हम यू नो इतना लंबा, आपके जितनी लंबी जर्नी करने के लिए ग्राउंडेड या होपफुल रहे? So you only say that we see that mental health illness can happen to anyone. So it's very difficult to keep yourself sane while working with people who has emotional troubles. People come to us with in their most vulnerable phase. जब आते हैं अपने पूरी किताब हमारे सामने खोल के रख देते हैं, और जैसे because the stories what I have told it is like 10-20 years old, but they have stayed with me because that has created a emotional impact on my mind also. So it is not, हम भी तो इंसान हैं, हमारे ऊपर भी इफेक्ट आता है. So it's difficult, but as you say कि हम जितना काम करते हैं ना उतना ज्यादा ऐसे लगता है कि हाँ we need to be humble because हम इतना ह्यूमन कनेक्शन देखते हैं, हम इतना इमोशनल ट्रॉमास भी देखते हैं, हम रिकवरी भी देखते हैं. तो और वी हैव सीन साइंस इवॉल्व, तो उन सारी चीजों से एक हेल्प मिल जाता है कि हम कैसे we need to be humble, right. And as you said, I mean, for the young professionals, psychiatry is an imperfect science. Right. Okay, nice. So आज जो हो रहा है कल बदलने वाला है. आप जैसे पहले जिस तरह से डायग्नोसिस किया जाता था, आज वो रीत अलग है. पहले जो मान्यताएं थी आज बदल रही है, ट्रीटमेंट भी बदलने वाली है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग साइंस. सो वी आर लाइफ टाइम लर्नर्स. वी हैव टू बी we will have to have some mentor, to keep ourselves updated with the science. And all उससे भी ऊपर what I will insist on is कि ये सब साइंस है, but the fact that कि जो सबसे ज्यादा हमारा काम है वो है पेशेंट को सुनना. जो हमारी एम्पैथी है, जो हमारा लिसनिंग स्किल्स है, वो हमारा कोर है. तो नेवर स्टॉप बिलीविंग इन दैट. ओके, सो दैट वो नहीं बदलने वाला, चाहे कुछ भी बदल जाए. सो वी शुड नॉट कि वो हमारा कोर है और वी शुड बिलीव इन दैट. True. एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ. That's very important. Share your feelings with people. So you may have someone, a colleague maybe, where you can share your feelings. So that's It's the same old saying that have your glass filled to be able to fill others' glass. Yes. So and beautiful line that psychiatry is an imperfect or like an ever evolving science. Yes. तो आपको भी उसके हिसाब से ही अपना पेस बना के रखना होगा, लर्निंग, एम्पैथी, सबका एक बैलेंस बना के चलना होगा. वाओ, दैट्स सो गुड टू हियर मैम. जस्ट अगेन एज अ अर्ली करियर प्रोफेशनल जिनके 5-5.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ही सुन रही हूँ,
फिर भी बहुत सेंस बैठ रहा है कि हाँ ओके इसी तरीके से आगे बढ़ पाऊंगी, वरना इट मे सीम लाइक अ डिफिकल्ट जर्नी। पर हाँ, जिस तरीके से आपने इतने अच्छे से इतनी लंबी जर्नी की है, इतनी स्टोरीज को, इतने लोगों को हेल्प की है, दैट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग मैम। I really hope all our listeners, be it psychology students, psychiatry students, residents, and all our clients, relatives, everybody who is listening to this, get some insight from it. And that's it. Thank you. Thank you, Rupali. Thank you so much, everybody, for Thank- listening. Do share if you have any other topics or suggestions for me to include for the next podcast. Whatever questions, comments you have, please feel free to drop it. Okay, thank you.